بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ اس بلیٹن میں میں ہوں سید تنصیر زیدی اور میں ہوں عروہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گورنر پنجاب کی برطرفی کی۔ ناظرین، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر پرویز الہی مقام گورنر پنجاب کے فرائض انجام دیں گے۔ کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمر سرفراز سے سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں سیاسی محاذ آرائی تھم نہ سکی۔ عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ کے بعد تحریک انصاف کے رکن اور گورنر پنجاب عمر سرفراز کا بھی دھڑن تختہ ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ کابینہ ڈویژن نے عمر سرفراز کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت گورنر پنجاب کو ہٹایا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گورنر پنجاب ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد عمر سرفراز چیمہ سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی، جبکہ گورنر ہاؤس کے باہر 1000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے، جس میں اینٹی رائٹ فورس اور پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ ادھر برطرف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد آئینی اور قانونی لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی سمری صدر عارف الوی کو ارسال کی گئی۔ آئین اور ضابطے کے مطابق صدر کے سمری پر دستخط نہ ہونے کی مدت پوری ہونے پر عمر سرفراز چیمہ کو بطور گورنر پنجاب ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ ادھر گورنر پنجاب کی برطرفی کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نئے گورنر کی تعیناتی کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت شروع کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے پنجاب میں سنگین آئینی بحران پیدا کر دیا ہے۔ امپورٹڈ کٹ پتلیاں پنجاب میں فساد کو ہوا دے رہی ہیں۔ صدر کی توہین اور گورنر کو شرمناک طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں اسکولی دستور شکنی کا خاموشی سے تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ پنجاب میں زمین فروشوں کا معاملہ بھی بلا تاخیر انجام تک پہنچایا جائے۔ عمران خان نے عدالت عظمیٰ سے پنجاب میں آئین کی توہین پر نوٹس کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بات کی گئی۔ کہا، پنجاب میں اسکولی دستور شکنی کا خاموشی سے تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ پنجاب میں زمین فروشوں کا معاملہ بھی بلا تاخیر انجام تک پہنچایا جائے، یہ مطالبہ کیا۔ ناظرین، پنجاب میں سیاسی محاذ آرائی۔ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو برطرف کر دیا۔ کابینہ ڈویژن نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد عمر سرفراز چیمہ سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، جبکہ گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو گورنر ہاؤس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، گورنر ہاؤس کی جان لیتے ہیں شاہد چودھری سے۔ شاہد چودھری بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت گورنر ہاؤس کی بات کریں تو گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، خاردار تاریں لگائی گئی ہیں۔ یہاں پر بختر بند گاڑی جو ہے وہ منگوائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹر کینن جو ہے وہ بھی منگوا لیا گیا ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ممکنہ آمد کے پیش نظر اور عمر سرفراز چیمہ کی آمد کے حوالے سے جو ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے واضح ہدایات جو ہیں وہ پنجاب پولیس کو، سیکیورٹی اداروں کو جو ہے وہ دے دی گئی ہیں کہ کسی بھی صورت عمر سرفراز چیمہ کو جو ہے گورنر ہاؤس کے اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ ان کو جو ہے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جو ہے جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے عمر سرفراز چیمہ کی زیر صدارت جو ہے اس وقت آئینی ماہرین کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے، جس میں مشاورت کی جا رہی ہے کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو گورنر کو ہٹایا گیا ہے، اس حوالے سے کیا فیصلہ جو ہے وہ لینا ہے۔ اس حوالے سے عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ قانونی مشاورت مکمل کرنے کے بعد آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کروں گا کہ اس حوالے سے کیا کیا جائے گا، اور جو ان کو ہٹایا گیا ہے، جو برطرف کیا گیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر نے جو ہے اس حوالے سے اس کو مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان کا سپاہی ہوں اور کوئی بھی غیر آئینی کام جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، گورنر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سٹی آف لندن کی جانب سے وسطی لندن کے ٹریفلگر سکوئر میں سالانہ عید میلہ سجایا گیا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مسلمانوں نے بھرپور شرکت کی اور عید میلے کا لطف اٹھایا۔ عید میلے میں خواتین، بچوں اور بزرگوں نے بھی شرکت کی۔ مختلف ممالک کے ثقافتی رنگوں نے عید میلے کو چار چاند لگا دیے۔ رنگا رنگ عید میلے کا مزید احوال جانتے ہیں غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔
मेयर ऑफ लंदन की जानिब से सालाना ईद मेला वस्ती लंदन के ट्राफालगर स्क्वायर पर मुनक्कद किया गया, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हजारों की तादाद में मुसलमान बाशिंदों ने शिरकत की। कोविड-19 पाबंदियों के 2 साल बाद ईद की रौनकें लंदन में दोबारा लौट आईं। सेंट्रल लंदन में सरकारी सतह पर मेयर ऑफ लंदन की जानिब से मनाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला होता है। इस ईद मेले में बरतानिया भर में मुसलमान ममालिक के रिहाइश पजीर शहरी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इस बार भी दुनिया के कई ममालिक के मुसलमानों ने मेले की रौनकों से लुत्फ उठाने के लिए भरपूर शिरकत की। ईद मेले में बच्चों की तफरीह के लिए फेस पेंटिंग और खिलौनों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां बच्चों का रश लगा रहा। ईद मेले में मौसीकी के सुरों ने शुरका के दिल मोह लिए। ईद मेले में पाकिस्तानी कपड़ों और खानों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। लोग पाकिस्तानी रवायती खानों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मेले के चीफ ऑर्गेनाइजर मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि उनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इस मुल्क में कुछ लोग कम्युनिटी को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें लोगों को मुत्तहिद होकर दिखाना है। आप सबको मालूम है कि हमारी जो दीन है इस्लाम, काफ़ी लोग इस्लामोफोबिक हैं, काफ़ी लोग डराते हैं लोगों को इस्लाम के क्या मतलब है, मुस्लिम्स क्या करते हैं। इसीलिए हम ये इवेंट्स ईद इन द स्क्वायर ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो समझें इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, we're not terrorists, we're not bad people. मगर unfortunately some people try and divide communities, try and turn people against Islam, Muslims. और हम कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह कि वो लोग एजुकेट हो जाएंगे वो इस्लाम मीन्स। सादिक खान का कहना था कि मैं लंदन के हर मुसलमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन कामों के लिए जो उन्होंने कोविड के दौरान किए, जानें बचाई और हमारी कम्युनिटी को बचाया और दीन इस्लाम का बेहतरीन मुजाहरा किया। मुझे बहुत फख्र है कि मैं मेरे अम्मी अबू पाकिस्तान से हैं। I'm very proud to be of Pakistani origin. I want to wish Eid Mubarak to all Pakistanis. I know they're going through difficult times. I'm hoping that Pakistan has a good recovery from the pandemic, and I send them my best wishes and my salams. ईद मेले के शुरका खास तौर पर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था ईद मेले में तफरीह का शानदार एहतमाम था। हर रंगो नस्ल के मुसलमानों ने खूब एंजॉय किया। हम अपना मुल्क, अपना वतन हम वो बहुत मिस कर रहे हैं। सेंट्रल लंदन में आना, सबके साथ ईद मनाना बहुत मज़ा आ रहा है। आप अपनी कम्युनिटी में दोबारा वापस आते हैं, लेकिन आपको अपना मुल्क वापस याद आता है। अच्छा प्रोग्राम है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ और बहुत एंजॉय हो रहा है। We've just come for a day out and we love your festival for eating here and it's lovely. It's nice to see you all. लंदन मेयर का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ईद मिलन पार्टी अरेंज की है, बच्चे बड़े सब आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Having a great time. There's been lots of activities and enjoyed the Qawwali and there's lots of food and there's lots of things going on, so having a great time. Eid Mubarak to everyone. No, it's fine as long as you're happy and enjoying yourself and you've got lovely children. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और अभी एंजॉय करेंगे बच्चे बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ आए हैं ईद सेलिब्रेट करने। ईद मुबारक सबको। ईद मेले में मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के लोगों ने अपने अपने ममालिक के रवायती खानों, मलबूसात और दीगर सकाफती स्टॉल्स लगाए, जिन्हें शुरका ने बेहद पसंद किया। खुशगवार मौसम ने वस्ती लंदन में होने वाले इस ईद मेले का लुत्फ दुबाला कर दिया। मुकामी बरतानवी शहरी भी बड़ी तादाद में मेले में शरीक हुए। लंदन के ट्राफालगर स्क्वायर में मेयर ऑफ लंदन की जानिब से सजाए गए इस ईद फेस्टिवल में दुनिया भर के मुसलमानों ने शिरकत की। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मगरबी लंदन के इलाके हौंसलों में मल्टी कल्चरल ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रंग व सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ शरीक हुए और खूबसूरत तकरीब का लुत्फ उठाते रहे। देसी खानों ने ईद मिलन पार्टी का मज़ा दोबाला कर दिया। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मगरबी लंदन के इलाके हॉन्सलो में बच्चों की इब्तदाई तालीम के हवाले से काम करने वाले अदारे की जानब से मल्टी कल्चरल ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी, सिख कम्युनिटी और दीगर मज़हब और सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत की। तकरीब में खवातीन और बच्चों की सच धज काबिल दीद थी। तकरीब के शुरका ने मल्टी कल्चरल ईद इवेंट को बेहद सराहा। इस मौके पर तकरीब के मेजबान इम्तियाज शेख और रविंदर सिंह का कहना था कि लंदन की मल्टी कल्चरल सोसाइटी में अपने त्यौहार मिलजुल कर मनाने से उनकी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। मकामी बरतानवी शहरी भी देसी लिबास ज़ेबतान किए तकरीब में शरीक हुए। उनका कहना था कि सकाफती रंगों से भरी ये ईद मिलन पार्टी उन्हें मुद्दतों याद रहेगी। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग आए हैं, मल्टी की तरफ ईद है, अलग अलग म्यूजिक के लोग आए हैं, अलग अलग नेशनलिटी के लोग आए हैं, हम ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है. This is the first time I come in for an Eid event and I quite enjoy it. I also dress up for the first time with Asian clothing and quite comfortable, and I come just to give respect to my directors, which are the ones that have organized the event, and I really enjoyed it. अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं. काफ़ी सारे मिलके आज ईद का फंक्शन मना रहे हैं. ये सारे डिफरेंट रिलीजन तो है क्या, वी ऑल लिव इन हॉन्सलो एंड बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग ईद विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. तकरीब के शुरा के रवायती देसी खानों से भरपूर तवाज़ो की गई. एशियाई चटपटे खानों ने ईद मिलन पार्टी को तड़का लगा दिया. शुरा ने तकरीब का भरपूर लुत्फ उठाया. गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK. बरतानिया की मुतादिद फलाही तंजीमों पाकिस्तान में फलाही सरगर्मियों में पेश हैं. बर्मिंघम की फलाही तंजीम मर्सी वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट UK और अज़ादारी काउंसिल UK ने भी इमदादी सामान से भरा कंटेनर पाकिस्तान भिजवा दिया है, जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों के ज़रूरतमंद, गरीब और नादार अफराद में तकसीम किया जाएगा. तफसीलात देखते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में. बरतानिया में कायम फलाही तंजीम मर्सी वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट और अज़ादारी काउंसिल UK एक अरसे से पाकिस्तान में गरीब और नादार अफराद की इमदाद में मसरूफ हैं. दोनों तंजीमें बरतानिया भर से मुखैर हज़रात से सामान इकट्ठा करके पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में बसने वाले गरीब और नादार अफराद के लिए भेजती रहती हैं. रमजान से पहले भी और ईद के मौके पर भी अज़ादारी काउंसिल ने अशियाए ज़रूरिया के कंटेनर्स पाकिस्तान रवाना किए. गुज़श्ता रोज अज़ादारी काउंसिल UK के चेयरमैन इलामा सैयद सब्तैन काज़मी ने बर्मिंघम से कंटेनर्स अपनी मौजूदगी में पैकिंग करवा कर पाकिस्तान के लिए रवाना किया. इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए इलामा सब्तैन काज़मी ने बताया कि पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया भी मुयस्सर नहीं है. हमारी कोशिश है कि हम हर माह अपनी बिसात के मुताबिक मुखैर हज़रात के ताउन से ये अशिया पाकिस्तान रवाना करते हुए अपने हिस्से का दिया जलाते रहें. हमने UK भर से अवाम ने बड़े लाजवाल जज्बों के साथ बहुत ही अपना सामान, गिफ्ट, कपड़े, चीज़ें बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, मर्दों के लिए. पाकिस्तान में हमारे बहुत लोग हैं जो इस्तेकाक रखते हैं, उन्हें मदद चाहिए. और हमारे दीन में सबसे बड़ी इबादत है दुखी इंसानियत की खिदमत करना. रमज़ान से पहले भी एक है भेजिए, और अभी आज फिर बर्मिंघम से एक कंटेनर हम क्वेटा, उसके बाद सिंध में जो पसमानदा इलाके हैं, लाहौर में कुछ NGOs तंजीमें हैं जिन्होंने किया है. तो यहाँ हमारे मर्सी वर्ल्ड वाइड के, अज़ादारी काउंसिल के, हमारे दीगर वेलफेयर और सोशल तंजीमें, जवान, सब ने हिस्सा लिया और सब इदारे तंजीमों ने बहुत आला काम किया है. और हम बड़े सुरखरू हैं, मुतमईन हैं कि हमने एक मिशन के लिए काम किया है. तो कौम की वफा को भी सलाम, उनके जज्बे को. हमारी फ़कत 2 बहनें वटफोर्ड से, उन्होंने 50 फैमिलियों के लिए न्यू ब्रांडेड आला किस्म के कपड़े जिस तरह खुद पहनते हैं वो माशाल्लाह डोनेट किए हैं. हम चाहते हैं ये सिलसिला हमेशा जारी सारी रहे ताकि हमारी आखिरत का आज़ाद राह हो, मौला खुश हो, अल्लाह राजी हो और यतीमों की दुआएं हों. ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से वतन अजीज की खुशहाली और हम वतनों की सपोर्ट का सिलसिला हमेशा जारी रहता है. पाकिस्तान में कई अमदादी मनसूबे, हस्पताल, तालीमी अदारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की मामनत से कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. भारत से आज़ादी और अलहदा रियासत के क़याम के लिए इटली में मौजूद सिख कम्यूनिटी ने अपना फैसला सुना दिया. खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनक्कदा रेफरेंडम में तकरीबन 40,000 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया. जून में रोम में वोटिंग करवाई जाएगी. बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड में पहले ही खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया जा चुका है. मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्रेशिया इटली में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में. भारत में खालिस्तान की अलहदगी और आज़ाद रियासत के क़याम के लिए जारी सिखों की तहरीक के रेफरेंडम का अमल इटली में भी शुरू हो गया. ब्रेशिया के ब्रेक्सिया फॉर्म में मुनक्कदा रेफरेंडम में वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा. ताहम वक़्त की कमी के बायस हजारों अफराद वोट कास्ट नहीं कर सके. वोटिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए निजी अतालवी कंपनी की खिदमात हासिल की गई थी, जहां सिर्फ इटली में रहाइश पजीर सिखों को ही कागजात की जांच पड़ताल के बाद वोट डालने की इजाजत दी गई थी. किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी.
सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा डॉक्टर बख्शेश सिंधु ने कहा कि भारत में सिखों समेत तमाम अक़लियतों के साथ मुज़ालम जारी हैं। आज के रेफरेंडम ने साबित कर दिया कि भारतीय पंजाब के लोग अपने लिए अलहदा आज़ाद रियासत खालिस्तान का क़याम चाहते हैं। आज़ादी हमारा हक है और हम पुरअमन और जमहूरी तरीके से अपना हक हासिल करना चाहते हैं। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੀਗਲ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ लड़ रहे हैं, खालिस्तान ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। खालिस्तान जिंदाबाद। सिख रहनुमा परमजीत पम्मी ने कहा कि खालिस्तान जरूर बनकर रहेगा और आज के रेफरेंडम की कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि खालिस्तान की आज़ादी अब दूर नहीं। उनका कहना था कि भारतीय हुकूमत की जानिब से इटली में मौजूद सिख कम्युनिटी पर वोटिंग में हिस्सा न लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इटली की धरती के उत्ते पंजाब रेफरेंडम कमीशन का पंजाब की आज़ादी का तीजा पड़ाव, हज़ारां की गिणती दे विच लोग पंजाब की आज़ादी ते मोहर लाउण दे लई, वोट पाउण लई पंजाब की आज़ादी दे लई इत्थे पहुंचे ने। ते इह रेफरेंडम जिहड़ा आ पंजाब रेफरेंडम कमीशन की अगवाई दे विच हो रहा ते पंजाब के लोग पंजाब नूं आज़ाद कराउण दे लई, हिंदुस्तान नूं दस्सण लई असीं पंजाब आज़ाद कराउणा तत्पर ने। रेफरेंडम में लोग खालिस्तान की आज़ादी के नारे लगाते रहे, जबकि वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी हजारों की तादाद में लोग कतारों में मौजूद थे। इटली के शहर ब्रेशिया में होने वाली खालिस्तान की आज़ादी के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और अब तकरीबन 5 बज चुके हैं। ताहम अब भी जो है हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन 25,000 से ज़ायद अफराद ने अपने वोट का हक जो है, राइट जो इस्तेमाल किया खालिस्तान की आज़ादी के लिए। और अब भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी जो है हज़ारों लोग कतारों में लगे हैं और तकरीबन इतने ही लोग जो है वो बाहर से अंदर दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, ब्रेशिया, इटली। अमारात में मकीम मारूफ बिजनेसमैन, सियासी और समाजी शख्सियत समीउल्लाह खान अखवान खेल की जानिब से शारजा में सियासी समाजी रहनुमाओं और बिजनेस कम्युनिटी के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी में शरीक मेहमानों ने समीउल्लाह खान अखवान खेल को नए कारोबार की मुबारकबाद भी दी। सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को ईद मिलन पार्टीज की शक्ल में मिल बैठने का बहाना मिल गया। गुज़श्ता रोज अमारात की रियासत शारजा में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन समीउल्लाह खान अखवान खेल की जानिब से ईद उल फितर और नई कंपनी शुरू करने की खुशी में शानदार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मौजूद मेहमानों खालिद हुसैन चौधरी, खलील बुनेरी, मियां मुनीर खास, इंजीनियर जुबैर खान, निसार खटक, नियाज खान शांगला और दीगर ने मेजबान समीउल्लाह खान अखवान खेल को नई कंपनी शुरू करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान का असासा है, जो दयार गैर में मुल्क का नाम रोशन करते हुए ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं और मुल्क की मुआशी तरक्की में किरदार अदा करते हैं। स्पेशली हमने कोशिश ये की कि पाकिस्तानी के लिए वैकेंसी क्रिएट हो, उनको जॉब दिया जाए यहाँ पे। और मैं यही गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हो कि इन्होंने भी हमको फैसिलिटेट किया और दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हो कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा के प्रोग्राम में शिरकत की। मेरे लिए ईद से भी बढ़कर है आज का दिन। एक तो एक नया बिज़नेस का जो हमने मतलब इफ्तिताह किया, हर पार्टी की नुमाइंदगी है, बिज़नेस कम्युनिटी है, पख्तून वेलफेयर के लोग हैं और बाकी जितने भी दोस्तों ने शिरकत किया, तो मेरे लिए एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ समीउल्लाह अखवान खेल साहब को जो आज ओपनिंग हुआ और स्पेशली सारा कम्युनिटी को मदऊ किया यहाँ पे।
तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हार्डवेयर का जो बिज़नेस है इसको मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर जो बिज़नेस है ये जो बोरी कम्युनिटी है उनके हाथ में है, मगर जो हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल में पाकिस्तानियों का बहुत कम नंबर्स आते हैं। तो मैं इस बात पे समी भाई के अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट इन लोगों ने किसी कंपटीशन पे आके हम लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस शुरू किया। जी आज तो बड़ी खुशी का दिन है। ईद के बाद एक और ईद है कि हम आज इधर इकट्ठे हुए शारजा में इंडस्ट्रियल एरिया में, और हमारे दोस्त हमारे भाई समी की जो उन्होंने एक्सटेंशन की अपनी बिज़नेस में, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पहले से जो बिज़नेस है यूज़ फर्नीचर का एक बहुत बड़ा सेटअप है शारजा में, और साथ में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी था। फिर इन्होंने आज एक और नया ब्रांच खोला है शारजा में। तो हमें बहुत खुशी है जब पाकिस्तान कम्युनिटी और फिर स्पेशली पश्तून कम्युनिटी बिज़नेस में अपना डेवलपमेंट करते हैं, एक और स्टेप रखते हैं। इससे ये होता है कि हमारे पाकिस्तान भाइयों को रोज़गार के और मौके फराहम होते हैं। एक्सपो के बाद दुबई में और भी बिजनेस जो बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कम्युनिटी भी उस पर अपना बड़ा रोल अदा कर रही है। मैं अपने दोस्त सबी खान को बिजनेस एक्सटेंड करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। This government they provide such environment for the foreigners where they can grow up, they can flourish, and this is the right time they start the business. I would like to suggest to every Pakistani community person that deliver the service every time and on time. मेहमानों ने पाक अमारात दोस्ती, भाईचारे और लाजवाल रिश्ते को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया और दोनों ममालिक की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ भी की गई। आखिर में पाकिस्तानी रिवायती खानों और स्वीट से शुरका की तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में पीपल्स पार्टी UAE के रहनुमा कैसर खान अफरीदी की जानिब से जयालों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी अमारात की क़यादत समेत PDM के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। नौमंतखब वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ साजिद हुसैन तोरी ने वीडियो लिंक के ज़रिए तकरीब से खिताब किया। तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। शारजा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमारात के सीनियर रहनुमा कैसर खान अफरीदी की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर ओवरसीज कमेटी, पीपल्स पार्टी व सदर उलमा व मशाइख आज़ाद कश्मीर हाफिज तारिक महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। PP गल्फ और अमारात की मरकजी क़यादत ने बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर खारजा बनने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब वफाकी वजीर बराए ओवरसीज साजिद हुसैन तूरी का तकरीब में वीडियो लिंक से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान में अब हकीकी जमहूरियत आई है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा, मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के जयालों का है। पीपल्स पार्टी PDM के साथ मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। तकरीब के मेजबान कैसर खान अफरीदी, PP अमारात के सदर सरदार जावेद याकूब और जनरल सेक्रेटरी PPP UAE खादिम शाहीन और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त बिलावल भुट्टो जैसे नौजवान वजीर खारजा की ही जरूरत थी। साजिद हुसैन तूरी को ओवरसीज मिनिस्टर बनाने से दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल होंगे। UAE के पूरी क़यादत प्रेसिडेंट UAE, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट गल्फ, ओवरसीज कमेटी के चेयरमैन हाफिज तारिक महमूद साहब, हमारे जो नए वफाकी वजीर बने हैं, वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी साजिद हुसैन तोरी साहब, इन सब लोगों का शुक्रिया जो आए और हमारे इस प्रोग्राम में हमें ये इज़्ज़त बख्शी, हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, और इन तमाम जियालों का भी शुक्रिया जो आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। पार्टी के जियाले तो एक बहाना ढूंढते हैं मिल बैठने के लिए, तो मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं और दुआ करते हैं इंशाल्लाह पार्टी को दिन दुनी रात चौनी तरक्की अल्लाह ताला की ज़ात दे। और बिलखसूस साजिद हुसैन तूरी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन स्पीच की और हमारे साथ अपने इज़हार मोहब्बत किया। तो यहाँ माशाल्लाह पूरे गल्फ की और पूरे UAE की सारी तंजीमें यहाँ कायदीन उनके मौजूद थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दायम दिर में सुख में अपने मुल्क के लिए, अपने कारकुन और जियालों के लिए हमेशा वक्त कुर्बानी देती रही है और देती रहेगी। इंशाअल्लाह आइंदा मुस्तकबिल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का है। कहूँगा कि आज कैसर अफरीदी साहब ने इतना उम्दा यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया और हम सबको यहाँ बुलाया। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हमारे वज़ीर ख़ारजा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क को एक टैलेंटेड नौजवान वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत थी, और आप देखेंगे कि PDM इंशाल्लाह मुत्तहिद रहेगी और ये पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हम लोग काम करेंगे, और एक बहुत ही अच्छी टीम इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको नजर आएगी। पीपल्स पार्टी UAE की मरकजी क़यादत का मजीद कहना था कि ओवरसीज में पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो चुकी है, जो आने वाले इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा करेगी। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तानी रवायती खानों से तवाज़ुह की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमारात की रियासत दुबई में फेस ऑफ दुबई इंटरनेशनल ब्यूटी
پیجن 2022 کا اعلان کر دیا گیا. تیاریاں مکمل. مقابلہ حسن کے آرگنائزر کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس میں عالمی شہرت ماڈلز اور شوبز انڈسٹری سے وابستہ مقامی اور غیر ملکی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی. مدثر خوشنود کی رپورٹ. فیس آف دبئی انٹرنیشنل 2022 مقابلہ حسن کا میلہ دبئی میں سجنے کو تیار. 19 جون 2022 کو دبئی میں مقابلہ حسن کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حسیناؤں کے ساتھ ساتھ مرد ماڈلز بھی ریمپ پر واک کریں گے اور مسٹر دبئی کے ٹائٹل کے لیے پرفارم کریں گے. فیس آف دبئی بیوٹی پیجنٹ میں عالمی شہرت یافتہ ماڈلز شرکت کر رہے ہیں, جن کی کاسٹنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. دبئی میں مقیم فیشن کی دنیا کا بڑا نام شیخ عنایت اس مقابلہ حسن کو آرگنائز کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ سے امارات میں ماڈلنگ اور فیشن کو فروغ ملے گا. ایونٹ کے آرگنائزر ماڈلز اور شرکا کا کہنا تھا کہ فیس آف دبئی بیوٹی پیجنٹ دبئی میں فیشن اور ماڈلنگ انڈسٹری میں سنگ میل ثابت ہوگا, جس میں 17 سے 27 سال کی حسیناؤں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. فیس آف دبئی ایونٹ ایک بیوٹی پیجنٹ ہے. یہ ہو رہا ہے جون 19 کو, اس کا فینالے ہو رہا ہے. آڈیشنز اس کے ختم ہو گئے ہیں اور وائلڈ کارڈ انٹریز ابھی بھی اوپن ہے. تو جو کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, جو ماڈل بننا چاہتا ہے, تو وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں فیس آف دبئی کے ایونٹ میں. We'll make it in 10 and 11 June in Lou Meridian, and also in Face Dubai come also in June. We support them and also he support us. It is really good. We support and we are also making a platform. Actually, we are having an event called International Fashion Gala. Again, there also we are empowering women. فیشن ایونٹ ہونے والا ہے. یہ انٹرنیشنل فیشن پیزنٹ ہے, تو یہاں پر میں چاہوں گی کہ جتنے بھی نیو ٹیلنٹ ماڈلز ہیں وہ آئے یہاں پر پارٹیسپیٹ کریں. اس میں آپ کو کافی موقع ملے گا, نیا چانس مل رہا ہے, موقع مل رہا ہے, جس طرح سے میں بھی پروموٹ کرتا ہوں. اور جس طرح سے یہاں پہ اس ایونٹ کے اوپر عنایت صاحب جو ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں فیس آف دبئی کو, تو انشاءاللہ یہ ایونٹ ہوگا 19 جون کو. Stay tuned. They have selected the models, so lot of research has been happening on it. اور جو models آئی ہیں وہ بالکل تراش کے جو ہوتا ہے کہ ایک talent نکلا ہے. I'm expecting that and I'm sure جو بھی winner ہوگا وہ 100% deserving winner ہوگا. Face of Dubai, this is a launch day today. We wish all the very best to all the models and I know they will rock it, and this is one of the best pageants. The room, as they already mentioned, it's full of positive vibes, and I'm so happy to be a member of this. And for sure, I'm going to participate in this event for Face of Dubai. ایونٹ میں معروف پاکستانی اور غیر ملکی سنگر, ماڈلز اور اداکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ایونٹ کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے نوکریاں پیدا ہوں گی. فیس آف دبئی میں شرکت کے لیے 500 سے زائد عالمی شخصیات کی رجسٹریشن ہو چکی ہے, جبکہ 200 سے زائد مرد اور خواتین اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں پاکستان کمیونٹی ہیمبرگ کی جانب سے خوبصورت عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا, جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے فیملیز کے ساتھ شرکت کی اور عید ملن پارٹی میں خوبصورت گیتوں اور مزیدار کھانوں کا خوب لطف اٹھایا. ننھے بچوں نے بے حد انجوائے کیا. دیکھتے ہیں روہیل بیگ اور اصغر مرزا کی رپورٹ. عید کے بعد دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی عید ملن پارٹیاں سجا رہے ہیں, جن میں پاکستانی کمیونٹیز کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اسی طرح کی ایک خوبصورت عید ملن پارٹی جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے سجائی, جس کا آغاز اللہ کے پاک نام سے ہوا. تلاوت پاک کا شرف ہیمبرگ کی سیاسی سماجی شخصیت رانا امیر محمود نے حاصل کیا. نظامت کے فرائض ہیمبرگ کی سیاسی سماجی کاروباری شخصیت فرید شاہ نے ادا کیے, جبکہ استقبالیہ کے فرائض کاروباری سماجی شخصیت جہانگیر سلیم نے ادا کیے. عید ملن پارٹی میں بچوں, نوجوانوں اور خواتین کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھرپور اہتمام کیا گیا, جس سے شرکاء بے حد محظوظ ہوئے. بچوں کے لیے میوزیکل چیئر کی گیم سجائی گئی, جس میں حصہ لینے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا. پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی شہرت یافتہ کلاسیکل گائک استاد شبیر خان گلو نے اپنی گائکی سے عید ملن پارٹی کو 4 چاند لگا دیے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منتظمین نے کمیونٹی کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں کسی نے شاعری پیش کی تو کسی نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عید ملن پارٹی کے اہتمام کو سراہا. شرکاء کا کہنا تھا, کورونا نے جس طرح ہم کو متاثر کیا ہے وہ ہم نسلوں تک فراموش نہیں کر سکیں گے. شرکاء نے ملی نغمے بھی پیش کیے. میرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان ہو, اس
कुर्बान आखिर में ईद मिलन पार्टी के शुरका की शानदार ज़ियाफत से तवाज़ो की गई। पाकिस्तान के रिवायती खानों ने पार्टी का मज़ा दोबाला कर दिया। गुज़िश्ता 7 बरसों से जर्मनी के शहर डोसडोर्फ में माथियस थाइस एजाज़ी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान टू नॉर्थ राइन वेस्टल्फा स्टेट के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो पाकिस्तानी और जर्मन बिजनेस ग्रुप्स के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और जर्मन कंपनीज़ के वफूद पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। माथियस पाकिस्तानी बिजनेस प्रोडक्ट्स और बिजनेस कम्युनिटीज़ को नॉर्थ राइन वेस्टल्फिया स्टेट में मुतारफ़ करवाने के लिए कोशा है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान महर से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। We visited together today 2 fairs, that's beauty and also the top hair. We have more than 15 exhibitors from Pakistan here to present scissors for the hairdressers and for the nails and all the things. Most of them, they are coming from Pakistan, from Sialkot. Yeah, and they are also here for Medica, where we have around 80 exhibitors in the surgical instruments business. So, and I was working here also. I was the director of the IGEGO Fashion Fair, what was the biggest fashion fair in the world, and with more than 2,500 exhibitors. And I was visiting Pakistan in 2000 first time, and I love the country, and we made a lot of production there. And this is why I have a good contact to Pakistan. Then they asked me if I have the interest to make the honorary consul of Pakistan to North Westphalia, and I love it. Yeah, this is to connect Germans with Pakistan people for the business. Yeah, so we bring German companies to Pakistan. And we look for Pakistan companies who will work with German companies. So it is very interesting, and also we push here especially the food fair, where is a big chance for basmati rice to push the volume here in the German market, also for pink salt. Mango is interesting, so textile is interesting, and have a lot of products what we will push here. So this is part of the job like a honorary consul, and also I look for the Pakistanis who live here in my area, that they have a good life. You are a good friend to Pakistan, and you have been doing your utmost efforts to uplift Pakistani businesses here in NRV state. So my question to you is that what brought you to become the honorary consul of Pakistan? I mean, was it by choice or by interest? No, it is shown for interest, and it is a very interesting business. Because I say business and not politic, because if you are honorary consul, you are more working with the commercial wing, so with the commercial consular to look for the business interests for Pakistan. So, and it's not, my job is not visa, yeah, so visa is also after Corona more in the digital art, and so my focus is complete to push Pakistan business in the European market. Which of the Pakistani products are quite popular to German clients, and what do you think about the quality of Pakistani products? Yeah, the point is the quality of Pakistan products, it can be cheap and it can be high professional. It's always a question what the customer pay. And you can see you can make footballs for $5.